I welcome you all to this session of Wajiram and Ravi in collaboration with Udan Society of Shahid Bhagat Singh College. Uh, as Shashank has mentioned, that the society we created, rather, I would say that there was one student who came to me, and when I was deputy coordinator in IQAC before becoming the principal, and he said he floated this idea and said that, sir, we want that there should be a society in the college. आशुतोष लड़का था वो बच्चा, and I got this idea, and then we started this society. The idea was to have a platform where the students can be guided about how to go about civil services. The moment you think of civil services, जैसे ही आपके दिमाग में आइडिया आता है सिविल सर्विसेज का, that moment you decide to paint the life of your dreams on a larger canvas. आप तभी डिसाइड कर लेते हो. बहुत लोगों को, आप इतने सारे लोग यहां पे बैठे हैं, मतलब दिस इज वेरी एक्साइटिंग ऑल्सो एंड heartening also, and it also inspires me to understand this thing that yes, there is a large number of students who want to prepare for civil services, especially in the times जहां पे स्टार्टअप पैकेजेस, जहां पे इसकी होड़ लगी हुई है, वहां पे एक सेक्शन है जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता है. दे वांट टू बिकम द सिविल सर्वेंट. तो today we want to have this discussion also. I will particularly talk about the UPSC pattern of optional, frequently asked questions the students have, that whether I want to become a civil servant, but whether I shall take the coaching or not, or can I do the preparation on myself. So we'll try to answer all these questions. But what is required in UPSC? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है. रिपीटेडली आप इतने सारे सेशंस अटेंड करेंगे, आप सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, उनके सेशंस अटेंड करते हैं, और बार बार वो लोग यही बोलते हैं, यू नीड डिटर्मिनेशन, यू नीड दिस, यू नीड दैट, और लास्ट में बोलते हैं ये आंसर राइटिंग स्किल्स, यू मस्ट हैव आंसर राइटिंग स्किल्स. अब ये आंसर राइटिंग स्किल्स होती क्या है? आंसर राइटिंग स्किल्स मीन्स you, whatever you think, are you able to present in a very impactful manner that when the examiner reads, the head examiner is already there, he has been the head examiner of UPSC. Head examiner means that he was the head where all the examiners will be there, and he would have planned that how the evaluation would be done. So this is something which you will be listening today from horse's mouth, that how actually what UPSC expects. So when it comes to answer writing skills, you have to write something in the impactful manner that when the examiner reads, he's just turning the pages, you have to force him to read your answer script. Otherwise, he will just give you below average marks and will move to the next answer script. So how you have to do it? वो कैसे होगा? इसका एक प्रोसेस होता है. आपको पहले नॉलेज गेन करनी है, आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, सोर्सेज कलेक्ट करने हैं, and after that you have to concise them, because मार्केट में इतने सारे मटेरियल्स मिलते हैं, इतना सब कुछ मिलता है पढ़ने के लिए, तो करें क्या? इसने बोला ये बुक ले ली, उसने बोला वो हमने ले लिया, ये मटेरियल ले लिया, वो मटेरियल ले लिया, and at the end of the day we have heap of books, we have so many photocopy notes of different coaching institutes. So information overload becomes a problem. So the first thing that you need to is you have to select the sources. What should be your sources? And those sources should be revised. बहुत लंबी लिस्ट नहीं बनानी है. Selected resources बनाने, उनको revise करना है. Revision is the key. Revise as many times as you can. Prepare the gist so that in 50, particularly if I am talking about optional, एक optional में दो पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक ऑप्शनल की जिस्ट आपने बनाई, बट वो पहले नहीं बनेगी, वो बाद में बनेगी.
and you should be able to revise that with the help of the notes, with the help of the gist, you are able to recall the main notes. वो एक बहुत जरूरी है. Otherwise, आप बड़े notes को small version में करोगे तो you will lose what is there in the main notes. So main notes should be revised, and then after that, after 4 or 5 revisions, a gist should be prepared, so that just by seeing the gist, एक वो bullet forms आपने लिख लिए. जैसे for example 14 principles. अब यूपीएससी नहीं पूछती है ऐसे चाइल्डिश क्वेश्चन के, बताओ हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स क्या हैं. ठीक है, वो पूछेंगे आपसे टेलर एंड फेयोल वर सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. कमेंट किस तरह से वो एनालिटिकल एस्पेक्ट को पूछते हैं, ये चाइल्डिश एस्पेक्ट नहीं पूछते हैं. एंड व्हाट यू नीड, सो you can see that I have prepared some frequently asked questions and basic information about the exam. So the first question that will come to your mind is, do I need coaching or mentoring, or can I prepare on my own? बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार कोचिंग करना, सब देखो गाइडेंस, मेंटरिंग, कोचिंग चाहिए नहीं चाहिए, बहुत सारे लोग बताते नहीं होंगे आपको. इवन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स भी आते हैं, बहुत बार ऐसा बोलते हैं, देखिए मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने खुद पढ़ लिया. There was a tradition, there was a time when used to, I am sure Sunil Oberoi ji must have prepared himself. But if you see the pattern of the examination at that time और आज की डेट में जो है बहुत चेंज हो गया है, और टाइम हमारे पास लिमिटेड है. So if you want to do it yourself, you can do it, but you will require 3-4 years. आप कर सकते हैं, आपको वो रिसर्च करनी पड़ेगी. But do you have that time? The question is, we don't have time. Especially we are dealing with Gen Zs, they don't have the time. Your time span is very less. Not more than 30 seconds you can concentrate. I am happy to see that you all are able to concentrate here and listening to me. Because आज की डेट में मैं ऐसा समझता हूं कि एग्जाम क्रैक करना यूपीएससी का आसान है, स्पेशली गिविंग द सिचुएशन. और जो ये आज की डेट में हमारे पास जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं, उनका टाइम स्पैन बड़ा कम है. वो इतनी फास्ट लाइफ में है, उनको ग्रेजुएशन होती नहीं है, सबसे पहले पूछते हैं कि हमारा पैकेज कितना लगेगा, क्या प्लेसमेंट है, क्या. अरे व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर लाइफ, पहले ये तो पता लगा लो कि करना क्या चाहते हो. सिविल सर्विसेज में जाना क्यों है, क्यों जाना है सिविल सर्विसेज में? बहुत सारे आंसर होते हैं. आई वांट टू वर्क फॉर द कंट्री, मैं नेशन के लिए करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, मैं वो करना चाहता हूं. Civil services actually provides you that platform where you can do what you want. And what you want doesn't mean that you will become so powerful, because when the power comes, it comes along with the accountability. You will be accountable. Now, gone are the days where you think that the civil servants were powerful and they can do whatever they want. But when I say whatever you want, it means that you can, whatever you think, you can constructively do for the country. You will have the resources, you will have the authority, you will have the manpower, you will have the idea. You have that potential to put your ideas, your wishes will become the command when you are whether a DM or when you come to the policy making in the secretariat. So if you want to prepare yourself, you can do it. But you can see that there is a difference. For example, if I am particularly talking about optional subject, what are the recent capital market reforms? अब ये capital market reforms हैं, ये over a period of ये reforms हुए हैं. अब ये काम मैं अगर खुद करने लगूं, एक क्वेश्चन है ये, मतलब कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स पे अगर मैं खुद करने लगूं तो इट विल टेक मी लॉट ऑफ टाइम, बहुत सारा टाइम लगेगा. मे बी ए डे जो मैं आज पूरा दिन लगा दूंगा और फिर मैं बाद में निकाल के लाऊंगा, हाँ ये दिस इज व्हाट आई हैव गॉट इट. एंड ऑन द अदर साइड, इफ यू हैव ए राइट मेंटोर, इफ यू हैव ए राइट कोचिंग, या कोई भी गाइड कर रहा है आपको, वो आपको एक आधे घंटे के लेक्चर में बता देगा, 1 घंटे के लेक्चर में बता देगा, दिस इज व्हाट द कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स व्हिच हैज बीन डन. नाउ योर टाइम हैज बीन सिग्निफिकेंटली सेव्ड. पीपल रीड सो मेनी क्वेश्चंस आते हैं, क्या हम न्यूज़पेपर पढ़ें, क्या हम ये पढ़ें, वो पढ़ें. आई नो कैंडिडेट्स दोज हु हैव गॉट सिलेक्टेड बाय सिंपली फॉलोइंग द नोट्स. एक मटेरियल लिया, उसको पढ़ा और पढ़ के सिलेक्शन हो गया. व्हाई? बिकॉज सपोज यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर 1 year. आपने
आज ले लो, आज आपने कोई 6 घंटे 8 घंटे आर्टिकल पढ़ा, यू स्पेंड द होल डे रीडिंग दैट आर्टिकल, रीडिंग दैट टॉपिक, पूरा पढ़ लिया आपने अच्छे से। जब आप एग्जामिनेशन दे रहे हो, सुबह 9:30 हॉल में बैठे हो, यूपीएससी के मेंस लिख रहे हो, आपको याद ही नहीं आ रहा है मैंने क्या पढ़ा था। वो 6 घंटे 8 घंटे जो आपने आज पढ़ा वो वेस्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? आपने पढ़ तो लिया, यू हैव टू कैपिटलाइज दो 6 hours and 8 hours which you have devoted today. वो कैसे होगा? If you are able to retain, so retention becomes the key. If you are not able to retain, then whatever you have studied that will be waste. तो इसीलिए एक मुझे सही दिशा मिल जाए, मुझे डायरेक्शन मिल जाए, मुझे एक स्टडी मटेरियल मिल जाए जो एक कंसाइज फॉर्म में हम दे सकते हैं। दिस इज व्हाट द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और एनी मेंटोर और एनी कोई भी इस तरह के जो चाहे हमारी सोसाइटी कह लो या कोई भी एक्सपर्ट्स होते हैं, दे हेल्प इट। नेक्स्ट, अच्छा, so conclusion is that coaching is required mainly for 3 reasons. First, it helps you in creating the strategy, making the strategy. हमें नहीं पता लगता है ना, हम लोग गुरु बड़ी जल्दी बनाते हैं, मतलब कहाँ आध्यात्मिक गुरु बड़ी जल्दी बनाते हैं। इतने सारे बाबा बन गए हैं लोग, और वो अपने आश्रम चलाते हैं, कुछ इस तरह के पंथ चलाते हैं, बिकॉज लोगों की प्रॉब्लम है, they feel deprived, they want to get enlightenment, they want to get knowledge. So no doubt that guru can be anyone, your teachers in the college, your school, somebody might have inspired you. आप लोग आज यहाँ बैठे हो, आप लोग क्या किस लिए बैठे हो? इसलिए तो नहीं बैठे हो ना कि यहाँ पे एयर कंडीशन लगा हुआ है, नए ऑडिटोरियम में बैठेंगे, कुछ टाइम पास हो जाएगा, ऐसे तो नहीं बैठे हो ना। यू वांट टू गेट समथिंग। कितने लोग ऐसे बैठे हैं कि मेरा तो ड्रीम नहीं है आईएएस बनना, मेरे पेरेंट्स का ड्रीम है। कितने लोगों का ऐसा पेरेंट्स ने चाहते हैं बनना? बताओ बताओ, ऑनेस्टली बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू वांट दैट? कितने हैं जिन्होंने पेरेंट्स चाहते हैं आपके आईएएस बनना? कितने लोग खुद बनना चाहते हैं? देखो, कोई बुराई नहीं है। इफ योर पेरेंट्स वांट यू टू बिकम एन आईएएस एंड दे हैव ड्रीम्ड अबाउट कि यस मेरा बच्चा जो है आईएएस बने, अनलेस एंड अंटिल यू ओन अप योर पेरेंट्स ड्रीम, that will be of no use. कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेरेंट्स ने सोचा है, ठीक है, पेरेंट्स ने ड्रीम किया आपके बारे में, बट unless and until your parents dream become your dream, it will be of no use. So coaching institute or any mentor will help you in making the strategy. Now the second is that it helps you in basically developing your approach, your perspective. What is your perspective towards it? अब if for example अगर कॉमर्स के कितने बच्चे हैं यहाँ पे? कॉमर्स के कम होंगे, पॉलिटिकल साइंस के सबसे ज्यादा होंगे ना, बीए प्रोग्राम के सबसे ज्यादा होंगे, ह्यूमैनिटीज बेसिकली। सो इफ यू सी कॉमर्स स्टूडेंट्स और से इनकम टैक्स, इफ यू सी द यूपीएससी सिलेबस, वहां पे इनकम टैक्स टैक्सेशन लिखा हुआ है, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट तो अब है नहीं। तो अब मुझे कोई बताने वाला नहीं है, मैं एज ए स्टूडेंट मैंने सिलेबस देखा यूपीएससी का इनकम टैक्स, अब यहां पे पढ़ने में तो पूरा सेमेस्टर चला गया इनकम टैक्स, फिर भी टीचर के सिलेबस खत्म नहीं हुआ। तो क्या मुझे अब आपको यहां पे इफ समबडी इज एबल टू गाइड यू दैट कि इनकम टैक्स में यूपीएससी का पैटर्न को एनालाइज किया, तो पता चला कि इनकम टैक्स में तो क्वेश्चन जो आता है लार्जली हाउस प्रॉपर्टी पे आता है, बिजनेस प्रोफेशन का क्वेश्चन ही नहीं आया आज तक। जबकि आप सीए का एग्जामिनेशन ले लेंगे, यहां पे कॉलेज में ले लेंगे, तो बिजनेस प्रोफेशन का क्वेश्चन आता ही आता है। तो माय स्ट्रैटेजी चेंज्ड, नाउ आई विल नॉट फोकस ऑन बिजनेस एंड प्रोफेशन क्वेश्चन, आई विल फोकस ऑन हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आता है, सैलरी का कभी कभी आता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का 2 पॉइंट आ जाते हैं, और लार्जली थियरी क्वेश्चंस आता है। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊं कि इट इज नॉट लाइक दैट, यूपीएससी में ये नहीं है कि आपको जो बोल दिया है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो न्यूमेरिकल, यू हैव टू टेल द एग्जामिनर व्हाट इज डिफरेंट इन मी, हाउ आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। यू मे यूज न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशंस इन अ थियरी क्वेश्चन and you may write theoretical interpretation in a numerical question. So you, unless and until you have to use diagrams, you have to use illustrations, you have to use examples, so that when he reads the exam, this your question, your answer, and he says that yes, this is what difference is.
नेक्स्ट, आगे आगे करो, आगे करो. सो व्हाट बैकग्राउंड वर्क कैन आई डू बिफोर आई ज्वाइन द कोचिंग? या कोई भी, मैं, हमारा बेसिकली पर्पस यहाँ पे लॉन्गर है, लॉन्ग टर्म में है. वी वांट टू कोलैबोरेट विद सच रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट so that if possible, if feasible, we can start the classes here itself. So faculties from Vajiram and Ravi can come here. Some of our teachers can also guide us, and we can have a comprehensive program which is economically viable, and it brings convenience for the student that simultaneously you are not going in one under one roof, you are completing your graduation also, and you are preparing for civil services also. So what background you can do, you can just दो चीजें सिंपली करनी है आपको. अपार्ट फ्रॉम जीएस, जीएस तो है ही, जीएस के 4 पेपर हैं, जीएस पे 1 2 3 4. ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, एक ही ऑप्शनल है. पहले 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, अब एक ही ऑप्शनल है. देयर आर 2 पेपर्स ऑफ ऑप्शनल, पेपर 1 एंड पेपर 2, एंड देन 1 एसे, एंड देन ऑब्वियसली ए पर्सनालिटी टेस्ट जिसको हम इंटरव्यू बोलते हैं. तो 250 का ये पेपर होता है. 4 जीएस के पेपर हो गए 250 के, 2 पेपर हो गए ऑप्शनल के 250 500 का हो गया. तो सबसे पहले ना, जो ऑप्शनल लेना है आपने, उसका सिलेबस उठा लो, पास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक उठा लो, एंड जस्ट गो थ्रू इट. सबसे पहले देखो कि क्या मुझे कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स है, वो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनली लेते हैं. कुछ उसमें से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं. सो ऑप्शनल आप कोई भी लीजिए. हम एक बार स्टैटिस्टिक्स भी देख लेंगे, हमारे पास रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट है कि यूपीएससी की डेटा कई बार कैसे मिसलीडिंग होता है. मतलब आई जस्ट वांट टू शो यू दैट डोंट गो बाय कि टीना डाबी का एक रैंक 1 आ गया तो मुझे पॉलिटिकल साइंस लेना है, या किसी वाई का अगर वो आ गया तो फिर मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेना है, सोशियोलॉजी लेना है, या कॉमर्स लेना है, कुछ भी लेना है. तो डोंट गो बाय दैट. एनालाइज योर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, कि मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है. आर यू एबल टू राइट? आप क्या अच्छे से लिख पाते हैं? आपके एक्सप्रेशंस अच्छे हैं? बहुत जगह लोग मॉक टेस्ट देते हैं और वहां पे एक कमेंट आ जाता है, इंप्रूव योर एक्सप्रेशन. अरे एक्सप्रेशन है क्या? एक्सप्रेशन वही है कि जो मैं कहना चाहता हूं, क्या मैं वो कह पाता हूं. एक सुनते ना वो मूवीज में आता है, भाई कहना क्या चाहते हो. तो एग्जामिनर अगर आपसे बोल रहा है कि भाई कहना क्या चाहते हो, आंसर शीट पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कहना क्या चाहते हो, तो इसका मतलब योर एक्सप्रेशन इज पुअर. आपसे पूछा अपना नाम बता दो, आप बोल रहे हो कि मैं तो रहता वहां पर हूं, मेरे फादर्स नेम ये है, और इसका मतलब क्या है? You are not communicating, you are not able to write what is being expected from you. So first you should read the question, identify the keywords, segmentize your answer, put the subheadings, and then frame the answers like that. I can have a session some other day on the answer writing specifically, कि इसमें specifically कैसे कैसे हम करते हैं. Next, थोड़ा सा ये देख लो कितने थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, किस किस एरिया से आते हैं. अब एग्जामिनर्स को डायरेक्शंस मिलती हैं, गाइडलाइंस आती हैं कि ट्राई टू कवर ऑल द सेक्शंस ऑफ द सिलेबस. पहले होता था कि 60 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता था, 300 नंबर का पेपर होता था, डू एनी 5 क्वेश्चंस, और बड़ा आसान था. मतलब 60 मार्क्स का क्वेश्चन होता था, पिक एनी 5, 8 में से 5 क्वेश्चन करने होते थे. अब एक क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, 20 20 10. अब देखो, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शनल का कोई भी उठाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 आर कंपलसरी. दे हैव ऑल 5 पार्ट्स, 5 पार्ट्स हैं, 10 मार्क्स है. अब मुझे ये बताओ, आपके सामने क्वेश्चन पेपर आके रख दिया, कितना टाइम लगेगा ये डिसाइड करने में मुझे क्वेश्चन कौन से अटेम्प्ट करने हैं. हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव टू रीड, और कितने क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करने हैं, बताओ. फर्स्ट एंड 5 10 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो, ये तो करने ही है. फर्स्ट एंड 5 क्वेश्चन में 5 पार्ट है, वो 10 क्वेश्चन तो करने ही है. उसके बाद कितने क्वेश्चंस बचे? 6. हर क्वेश्चन के 3 पार्ट है, 18 प्लस 10 28. उस 28 में से करने कितने हैं मुझे? 19. मैं आउट ऑफ द रेस तो तभी हो गया. 28 में से मुझे 19 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं. अगर मैं सही से नहीं कर पाया, आई एम आउट ऑफ द रेस. ये एग्जाम इंटेलिजेंस का नहीं है, ये एग्जाम ब्रिलियंस का नहीं है, ये एग्जाम स्मार्ट वर्क का है.
एक एवरेज लेवल का इंटेलिजेंस का व्यक्ति जो कि जिसका एप्टीट्यूड है, वो इसीलिए सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट आया ना, कि आप आर यू एबल टू डू, बिकॉज यू हैव टू हैंडल सो मेनी थिंग्स। कितने क्राइसिस होंगे जो स्मार्टली हैंडल करने पड़ेंगे। तो वो एक एक क्वेश्चन में आप सोचिए, फर्स्ट रैंक और लास्ट रैंक अगर 700 रैंक्स हैं, 700 रैंक्स हैं, तो पहली रैंक और 700वीं रैंक में 700 नंबर का डिफरेंस नहीं होता। कभी भी 700 मार्क्स का डिफरेंस नहीं होगा। कितना होगा? अभी आपको कट ऑफ दिखाएंगे, देखना कि कितना डिफरेंस होता है और कितनी परसेंटेज पे आपके कितने परसेंट मार्क्स आए थे 12th में, बताओ। 12th में कितने आए थे? 80%, 90%? ग्रेजुएशन में कितने आ रहे हैं? 80%, 70%, 65 70% आ गया। ये मेंटेन कर लोगे? आप बोलो मैं थ्रू आउट टॉपर था, 95% वाला बच्चा था मैं। यूपीएससी में ले आओ 50%, 50 ले आओगे तो टॉप में आ जाओगे। तो मतलब क्या, वो एग्जामिनेशन ही अलग है। तो क्या चाहिए उसमें? 28 में से 19 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए और मुझे क्वेश्चन अच्छे से आते थे, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो मैं एज नहीं ले पाया। आई नीड टू टेक एन एज ऑल्सो। अब जो लोग खुद तैयारी करते रहते हैं, घिसते रहते हैं, रगड़ते रहते हैं, वो लास्ट में जाके कहीं ना कहीं गिर जाते हैं। आपको वो एज लेनी है, वो एज लेनी है। हर एक मार्क्स में 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको मिल रहे हैं 4 नंबर, मुझे मिल रहे हैं 6 नंबर। 20 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको मिल रहे हैं 10 नंबर, मुझे मिल रहे हैं 13 नंबर। अब आप मुझे बताओ, और सब कुछ सही था, बस आपने कुछ डायग्राम अच्छे से बनाया, कुछ एक्सप्रेशन सही था, कुछ इलस्ट्रेशंस अच्छी थी, कुछ मतलब एग्जांपल्स अच्छे थे। ओवरऑल इंपैक्ट क्या आया? एक पेपर में 19 क्वेश्चंस थे, 10 वाले में मुझे 20 नंबर, 2 नंबर का मतलब 20 नंबर का एडवांटेज मिला, और बाकी 9 में मुझे 3 नंबर का। 27 प्लस 20 कितना हो गया? 47। एक पेपर में 47 का एडवांटेज, दूसरे पेपर में 47 का एडवांटेज, 97 मतलब 100, अराउंड 100 का एडवांटेज में तो ले गया, चला गया ऑप्शनल में। तो मैं आईएएस बन सकता था, या मैं लास्ट दैनिक्स में आया, या पौंडीचेरी पुलिस सर्विस में आया, पौंडीचेरी सिविल सर्विस में आया। लेकिन जब उन दोनों ऑफिसर से बात करोगे, इंटेलिजेंस लेवल जो है आपको हो सकता है सेम मिल जाए, लेकिन कुछ स्ट्रैटेजीज थी जो उसने फॉलो नहीं की। अगर वो कर लेता तो वो उस लेवल पे आ जाता। सो यू हैव टू हैव हाउ टू पिक ए कोचिंग इंस्टीट्यूट। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो क्या आपको देखना क्या चाहिए कि उसमें वो क्या ये प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू दिस प्रोसेस। 2002 में मैं बाजीराव एंड रवि में गया था, मुझे एडमिशन नहीं दिया इन लोगों ने। मैं लाइन में खड़ा रहा रात भर, सुबह गया तो वो बोले कि नहीं यहाँ पे टोकन बढ़ चुके हैं। मैं ये रियलिटी बता रहा हूं, इनको नहीं पता, आज मैं बता रहा हूं। मुझे एडमिशन ही नहीं मिला, लाइन लगती थी राजेंद्र नगर में इतनी। तो मैं नहीं चाहता, आज तो मैंने सोचा कि मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो लाइन में नहीं लगना चाहते होंगे, तो क्यों ना बाजीराव एंड रवि को यहीं बुला लिया जाए। ऐसा मैंने सोचा था कि आज इन लोगों ने मेरे को एडमिशन नहीं दिया तो कोई बात नहीं, इनको बुला लेंगे यहाँ पे। सो आर दे एबल टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स? वो कवरेज, ये टीचर को मेहनत करनी चाहिए कि आपके सिलेबस के बारे में उसको मेहनत करनी चाहिए। वो सिलेबस ऐसा हो जो नोट्स प्रोवाइड करे, दैट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव कवरिंग ऑल द सिलेबस। वो आपकी मेहनत, वो उसकी मेहनत होनी चाहिए। आपकी मेहनत कहीं और लगाओ ना, आंसर राइटिंग पे लगाओ। अब बहुत सारे बच्चे करते हैं, मैंने ये नोट्स पढ़ लिए, ये बन लिए, उसके मैंने नोट्स बना लिए, न्यूज़पेपर पढ़ा उसके नोट्स बना लिए। अरे भाई तुम्हारा काम नहीं है। जो तुम कर रहे हो ना, ये जो नोट्स बना रहे हो पढ़ पढ़ के, इससे फायदा दूसरे लोग लेंगे। तुम बाद में फिर गाइड ही करोगे लोगों को कि अरे यार इससे नोट्स बनते हैं, वो कहेगा दे नोट्स दे जरा, क्या बनाया था, वो पढ़ लेगा। तो ये काम लेट द स्पेशलिस्ट डू इट, लेट द एक्सपर्ट्स डू इट। योर कॉम्पैक्ट मैनेजेबल नोट्स, फैलाने नहीं है। फैला आप जितना मर्जी लीजिए, समेटना भी तो है। मैं फिर वही बोल रहा हूं, व्हेन यू आर राइटिंग द एग्जामिनेशन, आर यू एबल टू रिकॉल कि मैंने क्या पढ़ा था उस दिन। मैंने 26 मार्च को 3 बजे से लेके 8 बजे तक 5 घंटे लगाए, मैंने क्या पढ़ा। आई एम एबल टू रिकॉल व्हेन आई एम राइटिंग द एग्जामिनेशन आफ्टर 6 मंथ्स और 1 ईयर। तो वो कॉम्पैक्ट करना है, रिवाइज करना है, उनको बार बार रिवाइज करना है।
लिंक अप करना है, इंटररिलेशन होती है टॉपिक्स की इंटरलिंकेज। सिलेबस को अच्छे से पढ़ लो, सिलेबस का दिमाग में मैप हो जाना चाहिए कि मेरे सिलेबस में क्या क्या चीज है क्या नहीं है, एंड देन यू स्टार्ट रिलेटिंग थिंग्स। हमारे एक्स सीवीसी थे एक एन विट्टल, अब मैं आंसर राइटिंग की बात, एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं, तो एक्सप्रेशन कैसे उन्होंने बताया। ही वॉज डिलीवरिंग ए की नोट एड्रेस इन एक तिरुवनंतपुरम में कोई कॉन्फ्रेंस थी, उसमें वो डिलीवर कर रहे थे, और टॉपिक था रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन डेमोक्रेसी। रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल साइंस वाले बैठे हैं। तो अब एज ए स्टूडेंट नाउ व्हाट आई हैव नोटिस्ड दैट दिस इज द सेम टॉपिक व्हिच इज देयर इन द जीएस में भी यही है, रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन डेमोक्रेसी, मतलब ब्यूरोक्रेसी का क्या रोल है डेमोक्रेसी में। अब इफ यू हैव टू राइट एन एसे, हाउ यू स्टार्ट, मतलब वो एक्सप्रेशन कैसे आएगा कि एग्जामिनर पढ़ के खुश हो जाए कि हाँ यार ये स्टार्ट किया इसने। अब डेमोक्रेसी की डेफिनेशन तो सबको पता है, अब्राहम लिंकन की, है ना, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। मतलब क्या है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। अब डेमोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी लिंक करना है ना। सो गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, मतलब लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, लोगों की सरकार, लोगों के लिए काम करने वाली सरकार। सो गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, यस वी हैव सिंस इलेक्शन, उसमें लिखा उन्होंने, बोला भी, वो पेपर अब इंटरनेट पे नहीं है लेकिन वो मेरे पास है उसकी स्क्रिप्ट, कि government, people, elected people, representatives are yes elected by people. Since independence we have dozens of elections at various levels, central, state and local. So there is no doubt about that the representatives are elected by people. There is no doubt that the representatives are among the people. आप में से ही चुने जाते हैं, because every citizen is symbolically present in the parliament through their elected representative. Then he says that is the government for the people, because quite often a common man feels that the government and the government machinery doesn't work for him. So he says that if I measure democracy on an Abraham Lincoln scale, I found that only 2/3 democracy exists in India. Why? Because 1/3 democracy will be there when the bureaucracy will work, because bureaucracy is that machinery, bureaucracy is that instrument which actually delivers the aspirations of people. So if the bureaucracy is working for the people, then you can say yes, we have the government for the people, and then you will realize full democracy. तो ऐसे ऐसे expressions होते हैं. Life and file have the same letters. Life or file have the same letters. Once you become bureaucrat, you forget. For you, the file becomes everything, and you forget that that file is actually a life for someone, but you see it as a file. तो इस तरह के कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं, ये आपको पढ़ने से, रीडिंग से आते हैं, लेकिन फिर आपको कंसाइज करना है। एंड ल्यूसिड लैंग्वेज में, आंसर राइटिंग ल्यूसिड लैंग्वेज में होनी चाहिए, जो आप पढ़ रहे हो आपको समझ में आ जाए, हाँ, एग्जामिनर को पढ़ते के साथ ही समझ में आ जाए कि हाँ आपने क्या बोला, क्या है, क्या आप कहना क्या चाह रहे हो। आगे नेक्स्ट, ये सब टीचिंग मेथड। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, नाउ पीछे चलो 23। नाउ यू सी द पैटर्न, ये पास्ट 10 ईयर मार्क्स हैं यूपीएससी में। अब देखो सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में जनरल कैटेगरी में 75.41 ये कट ऑफ थी, 75.41 की। मेंस में 741 और फाइनल सिलेक्शन जो हुआ 953 पे हो गया। ये कट ऑफ मार्क्स है, ठीक है। हम कॉमर्स में पढ़ाते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट होता ना एक, नो फर्म वांट्स टू ऑपरेट एट ब्रेक इवन पॉइंट, बट स्टिल every individual is interested in knowing what is the break even point. Why? It doesn't mean that the firm wants to operate at break even point. कोई नहीं चाहता कि मुझे इतना ही हो। तो इसी तरीके से students, nobody wants that मेरा last यही marks आए, but you are interested in knowing what is the cutoff marks, because you want to know what is the first hurdle that I need to cross to become successful. तो ये आपको एक hope देगा। कैसी hope देगा? कितना परसेंटेज हुआ बताओ। अब देखो ये अब सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट तो मार्क्स नहीं जुड़ते हैं उसका मेरिट में, क्वालिफाइंग है। तो ये कितना हुआ, 200 में से हुआ ना, 200 में से 75.41 आपके आगे, तो आप क्वालिफाई कर देंगे जनरल कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस में है तो 68, ओबीसी में 74, 59, एससी एसटी 47.82।
अब मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे मेंस का 741 आउट ऑफ 1750, आउट ऑफ 1750। और ये ट्रेंड नीचे दिखाना, 22 का दिखाओ। अब 22 में देखो, उसमें 748 है 22 में, और ये 741 था, मतलब इट हॉवर्स अराउंड द सेम। और प्रीलिम्स का हो गया 88.22 और फाइनल हो गया 960। नीचे करो, 21 का दिखाओ, ऑलमोस्ट 745 मेंस में और फाइनल में 953। फिर नीचे करो, 20 का दिखाओ। अच्छा चलो, ये अब टोटल देखो। ये कहने का मतलब ये है कि ये 4 जीएस के पेपर हैं। मतलब मेरी स्ट्रैटेजी ये रहेगी, अगर ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, कि जीएस में आपके 250 250 250 250 1000 है। अगर आप 450 क्रॉस करके चारों पेपर में 450 to 500 अगर ले आए, ठीक है, काफी 500 तक टच कर जाओ, ऑप्शनल में वो आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्योंकि वो आपका कोर एरिया है। यूपीएससी ने एक ऑप्शनल किया इसीलिए कि आपका जो ग्रेजुएशन का एरिया है, दैट यू शुड टेक इट एंड द टाइम शुड बी शॉर्टन। पहले टाइम भी इसलिए ज्यादा लगता था क्योंकि 2 ऑप्शन होते थे, एक मेरे एरिया का, फिर दूसरा मैं पढ़ता था तो टाइम लगता था। अब क्या है, जीएस की कोचिंग की, साथ साथ पढ़े और निकाल दिया एक बार में। अभी बहुत सारे यूपीएससी के इंटरव्यू बोर्ड में आप देखेंगे सर बैठे हैं, तो जब कैंडिडेट आ जाता है ना फर्स्ट अटेम्प्ट में, वहां तक आ जाता है, एंड ही इज अ ब्राइट कैंडिडेट, यू बोर्ड भी नहीं जाने देना चाहता, वो चाहता है कि ये बच्चा दोबारा आएगा, टाइम वेस्ट करेगा, ये असेट है कंट्री के लिए, टेक हिम। सो आउट ऑफ 750 जो मैं बोल रहा था, अराउंड 43% अगर आपके मार्क्स आ जाए तो मेंस क्वालिफाई कर जाओगे, और 46% अगर आप क्वालिफाई कर अगर मार्क्स आ जाए आपके फाइनल में, तो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये मेरी कट, मतलब 43 से 46% मुझे मार्क्स लाने हैं। तो अगर मैं 500 वहां पे ले आया, 500 में से मैंने अगर 300 ऑप्शनल में ले आया, क्योंकि वो मेरा कोर एरिया है ना, और कितना हो गया, 450 और 500 से 300 800 हो गया, और बाकी का मेरा जीएस उसमें आ गया, एसए में आया, और फिर इंटरव्यू में आया। आई विल बी इन टॉप 50 ब्रैकेट्स। आपको एरिया आइडेंटिफाई करना है कि यहां मुझे इतना स्कोर करना है, यहां मुझे इतना करना है। अगर आप अपनी एनर्जी गलत जगह पे लगाओगे, एक ऐसे एरिया में लगा रहे हो वहां पे इनपुट आउटपुट रेशियो है ही नहीं, तो सही स्ट्रैटेजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, तो ये फाइनल कट ऑफ मार्क्स है, अराउंड 43% रहता है मेंस में, और फाइनल कट ऑफ रहता है 47 में। लेट्स हैव अ लास्ट स्लाइड। ये विच ऑप्शनल, अब बहुत सारे लोग स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, डेटा देखते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो सक्सेस रेट, देखो सबसे ज्यादा किसकी दिख रही है आपको, अभी एक दिख नहीं रहा है, एक लिटरेचर पेपर की है ना। अगर आप एक अभी इस पिछली बार की एनुअल रिपोर्ट देखोगे तो बोडो लिटरेचर में 100%, एक बंदे ने पेपर दिया उसी का सिलेक्शन हो गया, तो सक्सेस रेट होगी 100%। तो सब लोग बोडो लिटरेचर ले लो। वुड यू लाइक टू डू दैट? नहीं ले पाओ, नहीं लोगे ना, क्योंकि आई विल नॉट गो बाय दैट। नाउ योर कोर एरिया, यू शुड फोकस ऑन द कोर एरिया। और ऐसा नहीं होता कि ये सक्सेस रेट डिसाइड करती है। अगर आपको ये पता है कि मेरी स्ट्रेंथ ये है, तो मैं तो ये सोचूंगा कि मेरी स्ट्रेंथ अगर कॉमर्स है तो मैं तो कॉमर्स देखूंगा। मैं उन कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में देखो कितने 140 में से 21 कैंडिडेट्स, 15% का सक्सेस रेट है। इकोनॉमिक्स में 190 में से 25, 13.2% का सक्सेस रेट है। और ज्योग्राफी में 6.1% का है, लेकिन ज्योग्राफी भी पॉपुलर है, क्योंकि जहां पे कम लोग होते हैं वहां पे कम लोग सिलेक्ट हुए तो परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा लोगों में कम लोग या सिलेक्ट होंगे तो नंबर वाइज अगर वो ज्यादा भी दिखेंगे तो वो कम ही परसेंटेज होगा। सो व्हाट आई मीन टू से कि डिसाइड, चूज, थोड़ी सी मेहनत कर लो, ग्राउंड वर्क कर लो, और फिर डिसाइड करो कि भाई मुझे ये ऑप्शनल लेना है और यहां से मुझे पढ़ना है, ऐसी मेरे को तैयारी करनी है। So this is what I want to say, and I again want to thank Sunil Oberoi ji, who has taken out the precious time and he has come here to share. I'm sorry I have taken more time, which I was not supposed to, but seeing my students so excited, इसलिए मैं थोड़ा सा liberty ले ली time की. And I also want to thank हमारे समरजीत मिश्रा जी for coming here and extending all the support to organize this, and Shashank with his all team, Naman and all the faculty members, those were the part of the this Udan Civil Services Society, and the students.
So I hope that after this, we'll work for more collaborations with Vajiram and Ravi and such more institutes wherever we feel that it is advantageous to our students. We would like to work upon it. Thank you.